کینیڈا میں اسلاموفوبیا کا افسوسناک واقعہ۔ انٹیریو میں سفید فام کینیڈین نوجوان نے مسلمان خاندان کو ٹرک تلے رون ڈالا۔ 4 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں 2 خواتین، 1 مرد اور 1 بچی شامل۔ 9 سالہ بچہ شدید زخمی۔ پولیس نے 20 سالہ مقامی دہشت گرد کو گرفتار کر لیا۔ پاکستانی خاندان 14 سال پہلے کینیڈا منتقل ہوا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم کا اقدام مذہبی منافرت پر مبنی ہے۔ ملزم نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مسلمان خاندان کو ٹارگٹ کیا۔ مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے پر غور۔ کینیڈین وزیر اعظم کی دلخراش واقعے کی شدید مذمت۔ جسٹن ٹروڈو کا مسلم کمیونٹی سے اظہار افسوس۔ کہا کینیڈا میں اسلاموفوبیا کے لیے کوئی جگہ نہیں، ملک بھر کی مسلم کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اس نفرت کو ختم کرنا ہوگا۔ کینیڈا میں واقع لندن شہر کے میئر نے کہا کہ ہم اس خاندان کے لیے افسردہ ہیں جس کی 3 نسلیں فوت ہو گئی ہیں۔ کینیڈا میں پاکستانی مسلم فیملی کے قاتل کا واقعہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ، کہا یہ قابل مذمت دہشت گردی کا واقعہ مغربی دنیا میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کی نشاندہی کر رہا ہے۔ بین الاقوامی برادری کو اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے مل کر اور جامع کوششیں کرنا ہوں گی۔ مغرب میں اسلاموفوبیا کا ٹرینڈ بڑھ رہا ہے، روکنا گیا تو بے گناہ لوگ نشانہ بنتے رہیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ایکسپریس نیوز کے مارننگ شو ایکسپریسو میں گفتگو۔ کہا جاں بحق ہونے والوں کا گناہ مسلمان ہونا ہے۔ واقعے پر کینیڈین ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ میں مدعو کیا ہے۔ امید ہے ٹروڈو اس طرح کے واقعات کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی حافظ طاہر اشرفی کا بھی رد عمل۔ کہا پوری دنیا کو اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسلاموفوبیا کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو ہمیشہ تعاون کی پیشکش کی ہے۔ ڈیکی ٹرین حادثے میں جاں بحق مسافروں کی تعداد 62 تک پہنچ گئی۔ 100 سے زائد زخمی۔ جائے حادثہ پر ریسکیو آپریشن مکمل۔ اب ٹریک بھی بحال کر دیا گیا۔ پہلی ٹرین بہاؤدین ذکریہ ایکسپریس ڈہرکی سے روانہ۔ ترجمان ریلوے کے مطابق ڈاؤن ٹریک پر کام جاری ہے، وہ بھی بہت جلد بحال کر دیا جائے گا۔ وزیر ریلوے اعظم سواتی، چیئرمین اور آئی جی ریلوے سمیت دیگر افسران بھی جائے حادثہ پر موجود۔ ملک بھر میں سوگ کا سما۔ ڈہرکی ٹرین حادثے میں جاں بحق افراد کی میتیں گھروں میں پہنچنے پر رکت امیز مناظر۔ تدفین کا سلسلہ بھی جاری۔ حادثے میں ایک ہی خاندان کے جاں بحق 4 افراد کو لودھرا میں سپرد خاک کیا گیا۔ نوجوان تاجر مبشر قریشی کو نواب شاہ میں دفن کیا گیا۔ راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے پلانٹ آپریٹر رب نواز شاہ مانسیرا میں منو مٹی تلے دفن۔ حادثے میں شہید 2 کانسٹیبلز کی تدفین ان کے آبائی علاقوں جہانیہ اور خانیوال میں کی گئی۔ ڈیرکی ٹرین حادثہ پٹری ٹوٹنے سے پیش آیا۔ ابتدائی رپورٹ تیار۔ ایک انسپیکشن ٹیم کے مطابق حادثہ ٹریک کی ویلڈنگ ٹوٹنے کی وجہ سے پیش آیا۔ دوسری انسپیکشن ٹیم کا کہنا ہے کہ پٹری کا ٹوٹنا حادثے کی وجہ بنا۔ رپورٹ حتمی فیصلے اور باقاعدہ انکوائری کے لیے ریلوے فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر کو بھجوا دی گئی۔ کراچی کے شہری کی اپنے لاپتہ بچوں کے لیے دعائی۔ کہا اس کی بیوی بچوں کے ساتھ کراچی سے سرگودا جا رہی تھی۔ بیوی اور بچی مل گئی۔ 2 بیٹے 5 سالہ ہادی اور 8 سالہ مومن تاحال لاپتہ ہیں۔ بچوں کی تلاش میں مدد کرنے کا مطالبہ۔ ماضی کی نسبت رواں برس ٹرین کے خوفناک حادثات میں کمی ہوئی۔ معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کی اپنے بیان کی وضاحت۔ ٹویٹ کیا کہ گزشتہ 15 ماہ میں یہ پہلا بڑا حادثہ ہے۔ ریلوے کے نظام میں موجود خامیاں دور کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ریلوے ٹریک کی اپ گریڈیشن کی جا رہی ہے۔ میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر توڑ موڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔
PTI हुकूमत करप्ट तरीन करार। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद फाखान अब्बासी कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत के हर मंसूबे में अरबों रुपए की करप्शन हुई। कौन सा स्कैंडल है जो इस हुकूमत में नहीं हुआ? मुल्क तबाही की तरफ नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? मजीद कहा, कल के हादसे पर हुकूमत को कोई शर्मिंदगी नहीं। वज़रा की जानिब से कहा गया, ये हादसा अपोजिशन का किया धरा है। जो वज़ीर आज़म अवाम से इजहार हमदर्दी नहीं कर सका, वो मसाइल क्या हल करेगा? हुकूमत की अपोजिशन को फिर मिल बैठ करने की दावत। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान कहते हैं कि इलेक्शन इस्लाहात में अपोजिशन का अहम किरदार है। अपोजिशन को साइड लाइन करके तरमीम नहीं होगी। एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत ने कहा, अपोजिशन शफाफ इंतखाबात के लिए संजीदा है तो इसे आगे आना चाहिए। वज़ीर आज़म के दिल में सिंध के हवाले से कोई बुग़्ज़ नहीं। बर वक्त तरक्याती फंड्स इस्तेमाल ना करने वाले महकमों की जवाब तलबी होगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का फलाह आमा के मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की तरक्याती मंसूबों के लिए जारी फंड्स का बर वक्त इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, तरक्याती मंसूबों के म्यार पर कोई समझौता नहीं होगा। रावलपिंडी में एक और मंसूबे पर काम रोक दिया गया। रिंग रोड के बाद दो छठा मंसूबे पर भी काम बंद। हुकूमत ने डैम मुकम्मल करने के लिए दिसंबर 2021 की डेडलाइन मुकर्रर की थी। डैम की तामीर से रावलपिंडी को रोजाना 35 लाख गैलन पानी मिलना था। ज़राए के मुताबिक रावल डैम और खानपुर डैम अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं। दो छः डैम में मजीद ताख़ीर से रावलपिंडी में पानी की किल्लत खतरनाक हद तक बढ़ सकती है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर लेस्ली वेगरी की मज़ार क़ायद पर हाज़री। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। लेस्ली वेगरी ने कायद आज़म के मज़ार पर फूलों का गुलदस्ता रखा और मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। अमरीकी एहलकार ने फ़ातिमा जिन्ना और लियाकत अली ख़ान के मज़ार पर भी हाज़री दी। मुल्क भर में गर्मी का रात सूरज की तपिश से सब बेहाल। मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 3 रोज सूरज आग बरसाता रहेगा, जिसके बाद कहीं कहीं तेज हवाएं चलने और बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब शुमाली इलाका जात में शदीद गर्मी की वजह से ग्लेशियर पिघलने के अमल में तेजी। कई दरियाओं में दरमियाने दर्जे का सैलाब आ गया। मुल्क में कोरोना के वार जारी। मोहलिक वबा ने मजीद 53 जानें ले लीं। एक दिन में कोरोना के 1383 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 2.94% रिकॉर्ड। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 46,882 टेस्ट किए गए। पोलियो भगाओ मुस्तकबिल बचाओ। मुल्क भर में इंसदादी पोलियो मुहिम जारी। पंजाब के 20 अजला में 1 करोड़ 41 लाख बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। KP में 62 लाख से ज़ायद, जबकि बलूचिस्तान के 24 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसदादी पोलियो पर अहम इजलास। इमरान खान ने कहा कि पूरे मुल्क में 1 केस रिपोर्ट होना अहम कामयाबी है। अभी आगाज़ में आपको बताया कि इश्तियाल अंगेज़ तकारीर के 21 मुकदमात में MKM रहनुमा बरी। इंसदाद दहशतगर्दी कराची की अदालत ने बरियत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। इश्तियाल अंगेज़ तकारीर के 21 मुकदमात में MKM रहनुमा बरी। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी कराची की अदालत ने बरियत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। MKM रहनुमाओं पर पार्टी कायद की इश्तियाल अंगेज़ तकारीर में सहूलत कारी का इल्ज़ाम था। मुकदमे में फारूक सत्तार, वसीम अख्तर, ख्वाजा इजहार और दीगर शामिल थे। इश्तियाल अंगेज़ तकारीर के 21 मुकदमात में MKM रहनुमा बरी हो गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी कराची की अदालत ने बरियत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। कनाडा में महज मुसलमान होने की बिना पर एक ही खानदान के 4 अफराद को ट्रक तले रौंद दिया गया। दरिंदा सिफ्त मुलजिम ने पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को सोचे समझे मंसूबे के तहत
निशाना बनाया। कनाडा में मुसलमानों से नफरत का एक और दिलखराश वाकया। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 4 अफराद को ट्रक तले कुचल दिया गया। जाम बहक होने वालों में 2 खवातीन, एक मर्द और एक लड़की शामिल है। शदीद जख्मी 9 साला बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सूबा ओंटारियो के शहर लंदन में सफाक मुलजिम ने जानबूझकर ट्रक फुटपाथ पर चढ़ाकर मुसलमान खानदान को निशाना बनाया। पुलिस ने मुलजिम को शॉपिंग सेंटर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मजहबी मुनाफरत में संगीन जुर्म किया। हमला आवर पर दहशतगर्दी की दफात लगाने पर भी गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपनी ट्वीट में वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वो मुल्क भर में मुसलमानों के साथ खड़े हैं। कनाडा में इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं। सूबा ओंटारियो के वज़ीर आला और लंदन के मेयर ने भी वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। कनाडा में पाकिस्तानी मुस्लिम फैमिली के कत्ल का वाक़या सुनकर बहुत दुख हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, उन्होंने कहा ये काबिल मुज़म्मत दहशतगर्दी का वाक़या मगरबी दुनिया में बढ़ते इस्लामोफोबिया की निशानदही कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये काबिल मुज़म्मत दहशतगर्दी का वाक़या मगरबी दुनिया में बढ़ते इस्लामोफोबिया की निशानदही कर रहा है। अपने ट्वीट में उनका मज़ीद कहना था कि आलमी बरादरी को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए मिलकर कोशिशें करना होंगी। कनाडा में पाकिस्तानी मुस्लिम फैमिली के कत्ल का वाक़या सुनकर बहुत दुख हुआ, ये कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान का। उन्होंने कहा कि यह काबिल मुज़म्मत दहशतगर्दी का वाक़या मगरबी दुनिया में बढ़ते इस्लामोफोबिया की निशानदही कर रहा है। मगरिब में इस्लामोफोबिया का ट्रेंड बढ़ रहा है। रोका ना गया तो बेगुनाह लोग निशाना बनते रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा उम्मीद है कि ट्रूडो इस तरह के वाक़यात को रोकने में अपना किरदार अदा करेंगे। इस्लामोफोबिया का ट्रेंड बढ़ रहा है। ये इंडिविजुअल एक्ट तो हो सकता है, लेकिन ये एक उभरता हुआ ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान इसकी निशानदही कर रहा है। जैसे वजीर आजम, न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने अपना किरदार अदा किया था एक जख्म को हील करने में, मुझे यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो में उतनी ही सलाहियत है और वो भी बड़ी खंदा पेशानी से इस अमल को रोकने में और इस ट्रेंड को रोकने में अपना किरदार अदा करेंगे और ये पाकिस्तानी कौम का दर्द समझेंगे। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मज़हबी हम आहंगी हाफ़िज़ ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि कनाडा में मुस्लिम ख़ानदान पर हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने अपनी ट्वीट में कहा कि वाक़या खुली दहशतगर्दी और दीन इस्लाम से नावाक़फ़ियत का शाखसाना है। मग़रिब इस्लामोफोबिया का शिकार है, जिससे ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। दुनिया को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के मसले से निमटने के लिए आलमी बरादरी को ताउन की पेशकश की। कनाडा की मुतासरा फैमिली के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। इन्होंने कहा कि उम्मीद है कि कनाडा की हुकूमत मुतासरा फैमिली को इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाएगी। असिस्टेंट जनरल मैनेजर रेलवे ट्रैफिक मजहर अली शाह का कहना है कि रेलवे का निज़ाम 150 साल पुराना है। ऐसे निज़ाम में हादसा तो हो ही जाते हैं, लेकिन नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन हादसा को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। रेलवे का हमारा एक सिस्टम है जो तकरीबन 150 साल पुराना एक सिस्टम को हम मेंटेन करके चला रहे हैं और इस वक्त भी हम जो पैसेंजर सर्विसेज या फ्रेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तकरीबन कोई 60 मिलियन का पर एनम पैसेंजर की हमारी ट्रैफिक है। इस तरीके से हमारी कोई 8.5 मिलियन टन की फ्रेट ट्रैफिक जो इंडस्ट्री को हम सपोर्ट कर रहे हैं, इसी सिस्टम पे कर रहे हैं। अब इस सिस्टम पे, इसके जो निज़ाम पे, इसका जो टेक्नोलॉजी है, वो आपको पता है कि जब ट्रेन चलती हैं तो उस पर हादसात का होना एक होता है और असल चीज़ ये है कि हम इन हादसात को कैसे मिनिमाइज़ करें। तो उसमें कोशिश एक जारी है, एक फोकस तरीके से जारी है। इनकी अपग्रेडेशन के हवाले से भी काम जारी है। टेक्नोलॉजी का हम एक बड़ा यूज़ करना चाहते हैं। मेंटेनेंस के हवाले से जो हमारे स्टाफ है उनके हवाले से हम एक प्रायोरिटाइज, हम एक प्लान पे काम कर रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बनाए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, उसकी कंडीशन आपने देखी है, सबको पता है। और मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा था मीटिंग में कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप आएं, मैं खुद आपको ड्राइव करके ले जाऊंगा, मेरे पे भरोसा नहीं, आपको ड्राइव कर लीजिएगा, ये लफ्ज़ थे। आप ड्राइव करके देख लीजिएगा इस सड़क को।
वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनी और हैदराबाद से सक्खर पिछले 4 साल से, ये पिछली हुकूमत में, ये जब नवाज शरीफ साहब थे तब कराची लाहौर मोटरवे की बात बनी थी। ये एक सेक्टर नहीं, इसलिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करना है, हर साल इसको स्ट्रक्चर करते हैं। अब हमने फाइनली स्ट्रक्चर कर लिया इसको और इसमें 7 अरब रुपए से कुछ ऊपर VGF फंडिंग है, वो हम पूरी डाल रहे हैं। तो ये वो है। पंजाब के 32 अरब मैंने पहले बताए थे, आप नंबर चाह रहे थे। 32 अरब से बढ़ के 44.5 अरब 44.5 बिलियन हो गए, और मैं डिटेल्स भी बताऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के 38 अरब और बलूचिस्तान के 24 अरब, मतलब वहां पे कोई फर्क नहीं आया। हमारे 7 अरब बढ़ा है, उधर 12 अरब बढ़ा दिए, 12 अरब उधर बढ़ा दिए, और कहा कि बहुत बड़ा एहसान किया आपके ऊपर। लेकिन ये VGF फंडिंग है, भले हो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ही बने तो सही, अभी तक उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, बात हो रही है, किसी ने बनते हुए जब शुरू होगा, अल्लाह करे कि जल्द बने, मैं तो कहता हूं बने, इसी तरीके से बने, लेकिन बन नहीं रहा। अच्छा, ये तो हो गया सड़कों की बात कि सबको इंटरेस्ट है, हमें भी इंटरेस्ट है। हमारा कोई नया प्रोजेक्ट NHA की पोर्टफोलियो में नहीं है, एक भी नहीं है। सब पुराने हैं, जो ये पैसे रखे गए हैं ना, ये 15 अरब में आपको बताता हूं, बल्कि अभी बता देता हूं ना, इंतजार क्यों कर रहा हूं आपको। एक प्रोजेक्ट है जो इन्होंने क्लब किया हुआ है, खैर हमारा इंटरेस्ट है दो उसमें पोर्शंस में, कराची से यामशोरो से सेवन ड्यूल कैरेज में, और आगे रत्तो देरो से है बॉर्डर तक कोई, ये दो हमारे इंटरेस्ट के हैं। कराची से सेवन, यामशोरो से सेवन ड्यूल कैरेज में 2017 में, और ये मैं कई बार बता चुका हूं, 2017 में उस वक्त की हुकूमत, मैं खुद मीटिंग में मौजूद था, उन्होंने कहा कि ये है वफाक का रोड बनाना, उन्होंने कहते हम तब बनाएंगे जब सिंध हुकूमत आगे पैसे दे, ये पिछली हुकूमत की बात है। हमने कहा चलें जी, ये रोड इसलिए जरूरी है कि यहाँ जानलेवा एक्सीडेंट्स होते हैं रोजाना, आधे पैसे हम देंगे, आप बना लें। इन्होंने हमें कहा 14 अरब की कॉस्ट है, 7 अरब आपको देने पड़ेंगे। हमने कहा हाजिर, हम देंगे। अप्रैल 2017 में कहते नहीं है हाजिर हम देंगे से काम नहीं चलेगा, 7 अरब रुपए जमा कराएं। हमने कहा जी हाजिर, 7 अरब रुपए 17 अप्रैल 2017 को जमा कराए कैश पे। 2021 हो गई है, 4 साल। रोड पे आप लोग गए होंगे, मैं तो जाता रहता हूं, आप लोग गए होंगे, क्या पोजीशन है उसकी। और ये सारे खतूत हैं। अब तो मैंने लिखना इसलिए छोड़ दिया है, मैंने अपने आखिरी खत में लिखा है कि मुझे लगता है कि मैं बहरों लोगों से बात कर रहा हूं। ये खत है आखिरी, मैंने 18 अक्टूबर 2019 को लिखा है, उसके बाद 7 सितंबर 2018 को खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को, फिर जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे उनको खत लिखे हुए हैं। और इन खतूत में मैंने इनसे कहा है, इनको मैंने बताया भी है कि कितने लोगों की हलाकतें हुई हैं। अभी पिछले दिनों 2 महीने पहले भी एक रोड एक्सीडेंट हुआ है जिसमें मेरे एक बहुत करीबी जानने वाले की डेथ हो गई थी। हमारे फॉर्मर यूनियन काउंसिल चेयरमैन थे झांगारा यूनियन काउंसिल के, उनकी ये हालत रोड की है। और ये अच्छा मजे की बात, पहले 6.5 बिलियन रखे थे इस रोड पे, इस रोड पे नहीं, ये 3 रोडों की मिला के है। जब हमने शोर मचाया इसका, मैंने रोड का जिक्र किया तो 6.5 से 4 अरब रख दिए, कम कर दिए। ये है सारी डिटेल। और ये कहने के बाद कि भाई ये जानलेवा रोड है, लोगों की हलाकतें हो रही हैं, मैंने तो ये कहा है, बड़ा दुख से कहा है कि इसकी जिम्मेदार फेडरल गवर्नमेंट है। 4 साल में अगर आप आधे पैसे लेने के, मैंने इनको 2018 में कह दिया था कि अगर आपसे नहीं बनता ये पैसे आप हमें दें, हमारे 7 अरब भी वापस करें और जो 7 आपने रखने आप वापस करें। अगर हमसे आप 1 साल में ये रोड हम ना बना के दें तो जो सजा देनी है दे, सारे पैसे काट ले। खैर काट तो वैसे ही लेते हैं तो उनके कोई फर्क नहीं हमें पड़ता। तो ये लिखा है मैं इन खतूत में मैंने, लेकिन वो नहीं बना। उस वक्त जो मिनिस्टर साहब थे, एक जब मैंने पहली बार प्राइम मिनिस्टर साहब को खत लिखा तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी की। मिनिस्टर साहब ने मुझसे फोन पे बात की, कहा जी मैं कराची आ रहा हूं
मैं आपसे मिलूंगा। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। कराची पहुंचे, कहते कि आप फलानी जगह आ जाए मुझसे मिलने, एक स्टेट मिनिस्टर। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, रोड बना दो, मुझे आपकी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है, ये रोड बना दो। तो ये पोजीशन थी। खैर ये तो आ गया NHA के हवाले से। कहते हैं ना, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, जख्मों पे नमक छिड़कना, कोई इनसे सीखे। फाइनेंस डिवीजन का भी पोर्टफोलियो एक बना हुआ है। फाइनेंस डिवीजन में वो स्कीम्स होती हैं, फाइनेंस डिवीजन जो होता है ना फेडरल, जैसे हमारा है, उनके पास कोई इंजीनियर तो नहीं होते, कोई और पैराफर्नालिया नहीं होता कि वो काम कराएं। वो फाइनेंस डिवीजन जो काम करती है, जो पैसे रखे जाते हैं वो सूबों को दिए जाते हैं और सूबों के डिपार्टमेंट्स वो काम कर। हमारे यहाँ भी है ये फाइनेंस डिवीजन में। जब हमने देखा तो ये अगर नंबर चाहिए ना, अभी जरा ये अच्छे वाले आ रहे हैं, देखिए फाइनेंस डिवीजन में पंजाब की 14 स्कीमें थी पहले, APCC के वक्त तक। पहले का मतलब ये हफ्ता पहले, कोई 2 साल पहले की बात नहीं कर रहा। और 15 अरब रुपए एलोकेट किए थे उसमें। खैबर पख्तूनख्वा और फाटा की मिला के 10 स्कीमें थी, 66 अरब रुपए एलोकेट किए हुए थे। अजय इसमें मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं फिर कहता हूं आप 66 नहीं 666 अरब रुपए रखे। जरूरत भी है, फाटा बैकवर्ड इलाका है और ये इसकी उसके लिए है, कंपनसेशन के लिए। बलूचिस्तान की 28 स्कीमें थी, 18 अरब रुपए। सिंध की 2 स्कीमें, मैंने बताया ना 14, 10, 18।